sir. He is from Banaras BHU. So this should not happen. This should not happen. If you do such kind of activities, so it is all the time. It is not performance activity. It will be called like that. और एक जो परंपरा बन गई है, इन दिनों एक कल्चर बन गई है कि थोड़ा सा यहाँ क्लास करो, थोड़ा सा वहाँ क्लास करो, एंड दिस टेंडेंसी व्हाट आई एम फाइंडिंग ओवर हियर इन दिल्ली, ये दिल्ली में भी एक चीज़ मैं फील कर रहा हूँ, 2 दिन यहाँ क्लास करो, 2 दिन वहाँ क्लास करो, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव रिजल्ट, ये रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। So what do you supposed to begin with? Should I continue whatever I promised yesterday? Yes, Yes, sir. हाँ? Yes, sir, optional right. Yes. ये न्यू है क्या? Yes, sir. हाँ जी। ये न्यू है। आपने बारे में कुछ बताएंगे क्या? बताइए। बैठिए। मेरा नाम अनुज शोभित है। मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैं इस समय ग्रेजुएशन बीए कर रहा हूँ और मेरा विचार है मैं आईएएस बनूँ, इसलिए मैं दिल्ली के लिए वहाँ पे कोचिंग में आया हूँ। तो आप डायरेक्टली यहीं पे आए हैं और भी कहीं गए थे? बहुत फ्रैंक बताओ, सच बताओ। डायरेक्ट नहीं करा। कैसे यहाँ पे पहुँचे आप? सर अच्छा, आपके दिल्ली में फ्रेंड। That's good. So this is the referral from apart from you. आपका रेफरल है। आप एक बार फिर से बता दो तो बिहार से हो? Yes, sir. My name is Nur Hassan. I am basically from Bihar, Katihar. कटिहार। Yeah. नूरुल हसन। Nur Hassan, N-O-O-R. नूरुल हसन। You are from Katihar. Yes. That is a Muslim belt over there. Okay. Begusarai. These all Yes. comprises with that. So fine. आप एक बार फिर से बताओ अपने बारे Sir, में। my name is Sumit Kumar. I basically from Uttar Pradesh, district Gautam Budh Nagar. ये नोएडा। Yes, sir. And now I am pursuing graduation second year, BA program from Delhi University. कॉलेज? Sir, open. इग्नो। Yes. अच्छा, ओपन यूनिवर्सिटी। School of Open. So the topic of today option
Please note it down. May I know your introduction, please? My name is Priyanka. I'm from Meerut. I'm in UP. I'm preparing for state PCS in Meerut. How did you step down here? 12 class. Meerut try class clearing. Trial class. Yeah. What do you mean by trial class? Do you feel that you guys are in a position to test any kind of teacher, any teacher abilities? Not at all. This is misnomer, specifically in Uttar Pradesh. I used to visit to the Drishti for some orientation classes. Have you heard about the Drishti Coaching Institute? Very famous for the Hindi guys, UP. And never expected such kind of thing for the trial classes. Try to understand about that, whether you are getting to the teachers or not. Teachers को आप समझ पा रहे हैं या नहीं? Okay. क्योंकि जीवन भर कम से कम आप 15 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रही है ना? Yeah. तो दुनिया में बेस्ट जज करने का तरीका क्या है कि इस 15 साल में जो भी टीचर, एडुकेटर और मेंटर ने आपको पढ़ाया, उससे चीजें डिफरेंट लगी या नहीं? योर गुड नेम? Priyanka. Priyanka. Yeah. So Priyanka, now you are attain an age that you can find out what is good, bad and bad, what is right and wrong. Now you are at the driving seat of decision making part over there. So nobody concept. If you ask 100%, 100 kind of things, they will give you 100 type of advices. So what exactly part is that? You should have to attain a position, everyone's, सबों के लिए कि खुद से जज करें. You have to do it. UPSC बच्चा करता है. UPSC वही करेंगे जो पढ़ेगा. UPSC वही करेंगे जो फॉलो करेगा. अदरवाइज टीचर कभी भी किसी को IAS नहीं बना सकता, मेंटोर नहीं बना सकता. करना आपको. तो जब ये करना आपको बीड़ा आपने उठाया है, तो आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग खुद से डेवलप करनी होगी और पढ़ाई को आपको इंजॉय करना होगा. द रीडिंग शुड बी नॉट टैक्सिंग, नॉट बोरिंग. इट शुड बी enjoyable and you have to feel that, you have to prospect that कि this is going to yield result. इस निष्कर्ष में आप पहुंच जाएंगे कि आपको रिजल्ट मिलेगा. So I have a very vast and good experiences over here. A student used to go several institute, organization and workshop. No, that is not going to yield result. 1, 2 is enough. Google is enough. YouTube is enough. You should have to do each and everything to you. And now you are in a position to make the differences, what is right and what is wrong. Because you have attained the age of at least 20 to 21 years. और ये उम्र एक ऐसी होती चूंकि सब कुछ आपको कर गुजरना है 4 साल के अंदर में. 25 की उम्र तक सारे काम खत्म कर देने. तो इसमें प्रॉस एंड कॉन जैसी व्यवस्था कल आपकी प्रियंका नहीं होनी चाहिए. और आपकी UPPCS कंप्लीटली UPSC का सिलेबस, न एक लाइन आगे है न एक लाइन पीछे. So if you could maintain a mindset for the UPSC, then if you are focusing also towards that one, क्योंकि अपने करियर को सेव करने के लिए you can be cocksure, आप उसके बारे में cocksure होते हैं. Okay, your stream is what? आपका stream क्या है? Humanities है, science है, commerce है? Humanity. That's wonderful. आपका क्या है? Humanities है, science है, commerce है? आर्ट, में क्या बात है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री. कोई बात. Anyway, आपका science है ना? अभी मैंने एडमिशन नहीं लिया सर मेरा साइंस. जी? मेरा साइंस. No issue. आपने एडमिशन नहीं लिया मैंने अभी. सोचा क्या है पढ़ने में? आर्ट्स. ह्यूमैनिटीज सोचा है. आपका तो है? That's wonderful. तो this is an edge. अब सवाल उठता है, आप लोगों ने क्या सवाल किया? इनका शायद ह्यूमैनिटी नहीं. तो आपका इंजीनियरिंग है ना? फिजिक्स से साइंस लिया. फिजिक्स एंड साइंस है. इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसके लिए? ह्यूमैनिटीज के लिए. So the physical science or what we can the physics and chemistry is what? Again it is a discipline which provide complete social services to the community.
ये सोशल सर्विसेज करता है, आप सोशल सिस्टम को समझते हो। दोनों में फर्क क्या है? He provides social services. You introspect the society and then accordingly you try to introspect that kind of person that can directly associate with that. तो अगर ये साइंटिस्ट बनते हैं, फिजिक्स इनका सेक्शन है, तो इसकी यूटिलिटी कहाँ पे है? Where is the utility of physics? अगर मैं सवाल पूछूं तो क्या जवाब दोगे? Where is the utility of physics and what is the purpose to study about the physics? What is the purpose regarding that? What is the utility regarding that? What should be your answer? मैं छोड़ूंगा नहीं अगर आपने एडमिशन ले लिया, मुझसे पढ़ना शुरू किया, हर हद तक जाऊंगा जिस हद से आगे तक यूपीएससी कल्पना कर सकता है सवाल पूछने, क्योंकि मेरे जो 12-15 साल का तजुर्बा है जेएनयू से लेके कमीशन के मेंबर तक का, उसमें मैं छोड़ूंगा नहीं किसी हद तक। और मानव के पास हर प्रश्न का जवाब होता है, ये नोट करो। दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो सुलझा नहीं, यहाँ तक कि बारमूडा ट्रायंगल के बारे में भी पता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने सवाल क्या किया, आप जो फिजिक्स पढ़ोगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंडीशंस क्या है। ये आईएएस बनेंगे, इनका ऑब्जेक्टिव सामने नजर आ रहा है या नहीं, कि भाई आईएएस होकर डंडा घुमाएगा, पुलिस मिल जाएगा तो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ही करेगा। आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कम्युनिटी सर्विसेज। फिजिक्स में है एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, फिजिक्स में ही बहुत सारी चीजें हैं जो सिस्टम जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट है काम, आप सारा का सारा काम किसके लिए करोगे? कम्युनिटी सर्विसेज। द साइंटिस्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ द साइंटिस्ट? साइंटिस्ट प्रोवाइड सर्विसेज टू द कम्युनिटी, साइंटिफिक विजन के हिसाब से सारी चीजों को क्रिएट करता है। बहुत सारे गैजेट्स बनते हैं, मशीन बनते हैं, किसके लिए? इज इट क्लियर? एंडोस्कोपी होता है नहीं होता है, कोलोनोस्कोपी होता है नहीं होता है, वो कंप्लीटली फिजिक्स है या नहीं? तो दैट इज द पार्ट ऑफ द कंडीशन इज सिमिलर दैट यू शुड हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। आप जिस दिन हर चीज को कनेक्ट करना जान गए, आपको दुनिया में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। द थिंग इज दैट यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू कनेक्ट द डिसिप्लिन व्हाटएवर यू आर अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर, आपको कनेक्ट करना होगा और कनेक्ट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। हर आदमी का, यूपीएससी ने क्यों कहा है कि हमें सिर्फ बीए पास चाहिए? कहा है ना, इसलिए कि उसको एबीसीडी आती है, बस उसको 2 का स्टैंजा याद, बस वो जानता हो कि ईश्वर भी कोई चीज है, और कहा जा सकता है ईश्वर अगर है विश्वास नहीं, वो जानता हो कि धर्म क्या होता है, वो जानता है कि माता पिता क्या हो, वो जानता है कि हम भारतवासी हैं, इंडिया के नेशनल है, इंडिया के सिटीजन। बस यूपीएससी नहीं कहता, लेकिन कहता क्या है? आपके पास जो नॉलेज हो, आपके पास जो नॉलेज हो, वो कहां से नॉलेज की शुरुआत हो? जब आप 5वीं क्लास में हो। 5वीं क्लास में आप लोगों की उम्र क्या होगी बच्चे, बता सकते हो क्या? 5th में 4 साल। Sir, I think 13, 12 and 13. आप- something. सर 5 साल 5 साल 5वीं क्लास से हर लोग ये चीज जान जाता है कि लाइफ होती क्या है, आदमी जान जाता है जीवन होता क्या है, आदमी जान जाता है मृत्यु होती क्या है। 5वीं क्लास क्यों मैंने कहा? इसलिए कहा दैट इज द एज you could manage to understand about the right and wrong, अच्छा और बुरा। बच्चा उस एज से, ये पूरी दुनिया का साइकोमोटर पैरामीटर, पूरी दुनिया में कहीं कहीं पे वो लेवल काफी ज्यादा हाई है। जर्मनी में देखोगे तो 5वीं क्लास में अंडरस्टैंडिंग लो है, ब्रिटेन में देखोगे बहुत हाई है, और वैसे जगह पे मैच्योरिटी भी 20 साल की उम्र में होती है प्रॉपर, लेकिन भारत जैसे देश में कभी हो जाती है। तो कहा जाता है कि यूपीएससी वही चीज को पूछता है जिसका रूट्स निकल जाता है 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास का एक ऐसा उम्र है जहां पे हर एक तमीज आदमी को हो जाती है, एवरीथिंग ही डायग्नोज, एवरीथिंग ही नोज अबाउट, यहां तक कि बोलना शुरू कर देता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आर्मी पर्सनल बनूंगा,
इज इट क्लियर? तो यूपीएससी ने क्या किया? यूपीएससी ने ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया रखा, बी मैच्योरिटी आपको आ जाए, अच्छे बुरे की तमीज हो जाए, कंट्री के बारे में जान जाओ, नेशन के बारे में जान जाओ, नेशनलिज्म के बारे में जान जाओ। जब राजीव गांधी आते हैं तो क्या देखते, एज को और घटाते, कहते हैं कि भारत का बच्चा 18 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, वो अपने नेता को चुन सकता है, इलेक्शन दे सकता है, इलेक्शन कार्ड की व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो दैट इज द फंडामेंटल। यूपीएससी कभी नहीं कहता है कि हमें इंटेलेक्चुअल, यूपीएससी कहता है हमें एक आदमी चाहिए जो नॉलेजेबल। मेरी बात को समझो गौर से। अगर मैं सवाल पूछता हूं आप लोगों से नॉलेजेबल, अगर मैं कहता हूं नॉलेजेबल और फिर मैं सवाल करता हूं इंटेलिजेंट, फिर सवाल करता हूं सेंटिलिटिक, यानी एक आदमी बहुत ब्रिलियंट है, सब कुछ है ना? लेकिन यूपीएससी कहता है कि हमें ब्रिलियंट नहीं चाहिए, हमें इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, हमें वॉरिशियस लीडर नहीं चाहिए, हमें एक साधारण आदमी चाहिए जिसको ज्ञान, जिसको नॉलेज। सर अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग है ना? द सेकेंड वे अंडरस्टैंडिंग इज अ बिग इंटरप्रिटेशन। लेकिन नॉलेज शब्द आपके दिमाग में आ जाए, नॉलेज शब्द आपके दिमाग में आ जाएगा। और आपके दिमाग में क्यों आएगा? कि बचपन से आपने एक शब्द सुना है, जीके, सुना है या नहीं सुना? बता दो। मैं बच्चे वैसी चीजों को लेकर के चलूंगा कि आजीवन उसको भूलो, कंफ्यूज हो आया है ना? जनरल नॉलेज। अगर मैं कहूं कि जनरल नॉलेज होता क्या है, बताओगे? जल्दी से बोलो। तो सामान्य ज्ञान जो तो क्या है? सर जिस चीज को भी आप देख रहे हो उसके बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में बेसिक थिंग्स पता होनी चाहिए। अच्छा, बेसिक थिंग्स पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आप सर कोई भी जो दिख रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या कुछ भी। आप प्रियंका? सर और सब्जेक्ट आई थिंक बेसिक नॉलेजेस होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल था दो आप लोग। यूपीएससी कहता क्या है? जनरल स्टडीज। यूपीएससी का सिलेबस क्या है? जनरल स्टडीज। देयर इज नो जनरल नॉलेज। तो यहां पे सवाल मैं तुरंत पूछूं आप लोगों से कि जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज में क्या फर्क है? जिस दिन ये जान गए प्रॉब्लम क्या है जो आप लोग परेशान हो रहे हो, और मैं कहता हूं कि कोचिंग मत करो, ना कभी ने किसी ने पढ़ाया, मेंटरिंग किसी ने नहीं की। टीचर्स आपको बहुत मिले, मेंटोर नहीं मिले। मैं मेंटरिंग कर रहा हूं, टीचिंग नहीं कर रहा हूं। मैं दे रहा हूं कि ये चीज है, ये जीवन भर रखो। तो जिस दिन आप नहीं जाओगे, जो कि एक बुक शॉप में इलाहाबाद में गया था लेने के लिए, एक देखा कि बच्चे ने 3-4 किताब मेरे देखते देखते खरीद ली। क्या हमको जीके का जनरल नॉलेज की किताब चाहिए? तो उसने देखते बच्चे करते क्या? सर आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए जीके की किताब खरीद रहा हूँ। मैंने कहा कि आपने आईएएस का सिलेबस देखा है? जी सर 3 साल से पढ़ रहा हूँ। वक्त सिलेबस क्या? कहा सर जीके पढ़ना है। तो बच्चा फिर से तुम पढ़ो, सिलेबस को फिर से देखो। क्यों मैं कहता हूँ कि सिलेबस साथ में, क्यों मैं कहता हूं कि क्वेश्चन पेपर साथ में? कुछ रीजन है या नहीं? तुम का सिलेबस निकाला उसने तो साफ लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज है। मैंने कहा ये क्या लिखा है? तो जनरल स्टडीज लिखा है सर, वही तो है सामान्य ज्ञान। मैंने कहा कि नहीं बेटा ये नहीं। इज इट क्लियर? दैट जनरल स्टडीज आर अ डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट एंड जनरल नॉलेज इज Is it clear to you? अब सवाल होगा कि जनरल नॉलेज कैसे इनहांस होगा, जनरल स्टडीज कैसे इनहांस होगा। अब चीजें दो डायनामिक्स आती हैं। जिस दिन ये ज्ञान आपको हो जाएगा, मार्केट में जाओगे तो जनरल स्टडीज की चीज देखोगे, अखबार पढ़ने की बात होगी। आपने कहा था अखबार पढ़ने की बात ना, अखबार में पढ़ोगे जनरल स्टडीज की बात होगी, जनरल नॉलेज की बात कराती नहीं। तो पहले तो जानना होगा ना बाबा कि जनरल स्टडीज क्या होता है। सर आई थिंक जीके में हिस्ट्री मतलब और बच्चा जीएस में प्रियंका जी घबराओ,
मैं वहां से लेके चलूंगा जहां पर आप किसी और को कन्विंस कर सको, किसी और को बता सको, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में एग्जामिनर को कन्विंस करना, मुझे नहीं करना। The accumulation of knowledge should be at that parameter that you should have to deliver, and that should be comprehending part from the part of what? Examiner. जो एग्जामिनर को आप समझा सकोगे तभी पास होगे। यहाँ हमें बात नहीं करना, इन्हें नहीं बात करना, और वो काम तब हो सकता है when you would be in a position of the commanding situation, जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, जब चीजें आपकी बिल्कुल वाइब्रेंट होगी, कंडीशंस क्या होगा, बिल्कुल वाइब्रेंट होगा, then you could manage to understand the project। मेरी बात समझ में आ रही है? घबराए चले गए हो, घबराओ बिल्कुल। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। अब प्रियंका सवाल उठता यह है कि जनरल नॉलेज कैसे डेवलप किया जाए, जनरल स्टडीज कैसे डेवलप किया जाए। इसे क्लियर देखो, मुद्दा पलट रहा है लेकिन पलटने नहीं दूंगा, ये क्लैरिटी कर दो क्योंकि ऑप्शन में ये चीज आपको हेल्प करेगी। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पहले तो कोर कॉन्सेप्ट जानो, व्हाट एग्जैक्टली इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इज ए काइंड ऑफ नॉलेज which can be accumulated, which can be grabbed, which can be received with the surrounding and environment. जनरल नॉलेज एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी विशेषता है जो घर से शुरू होती है, आपकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट से शुरू होती है, और वो चीज पूरी तरह से डिपेंड किस चीज पे करती है। पहला कंडीशन क्या है? इन्वायरमेंट। दूसरा कंडीशन है योर एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। योर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, हर एक आदमी का इंटरेस्ट अलग होगा। आप 7 लोग हो, 6 लोग हो, 6 का इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट होगा, तो एप्टीट्यूड भी डिफरेंस हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? एंड दिस नॉलेज इज वेरी मच, एक टर्म इस्तेमाल किया है मैंने, डायनामिक। डायनामिक का मतलब है हर पल, हर घंटे, हर सेकंड you acquire different knowledge. Today you are using Samsung phone, and after 1 month you are going to use Apple phone. Your knowledge of understanding of the scientific will be completely changed. Today you are in a, you can say, shirt and jeans, and the day you will be in a robe of salwar kameez or sari, the dynamic would be completely changed. Today you are eating fast food, next day you are eating junk food, next day you are eating Hindustani thali, your idea observation will be completely changed. Is it clear or not? Yes. अगर मैं थोड़ा सा सवाल कर दूं कि फास्ट फूड और जंक फूड में फर्क क्या है, जवाब दोगे क्या? Yes, sir. बता दो। फास्ट फूड ज्यादातर तेल में ही बना होता है। हाँ चलो, मैंने दिया आपको आंसर पे कि 10 जंक फूड ले लो, 10 फास्ट फूड ले लो, बता दो 5 फूड फास्ट फूड कहना, 5 जंक फूड कहना।